Hi all, welcome to this post-market report. My name is Salman Sheikh and you're watching Salman Sheikh's Capital Investments. Capital Investments is my private limited company. आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की. Nifty 50 is the most traded index in terms of volume and it is the highest in the world. तो निफ्टी 50 की बात तो हम करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉर इंडिया. और आज का स्टॉक इन फोकस रहेगा M&M, यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा. और गाइस, आप ये चैनल अगर रेगुलरली विजिट करते हो और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस. और अगर वीडियो पसंद आता है तो डू हिट द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले. एंड गाइस, प्लीज डू विजिट माय चैनल पेज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड इन जनरल ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट. तो इस पर काफ़ी सारे वीडियोस है. आई जस्ट वॉक यू थ्रू माय चैनल. Official YouTube channel, and you can go under the YouTube videos and check out all the videos. अगर आप बेसिक लेवल के ऑप्शन ट्रेडर हो and if you are learning, then you should check out this video, that is the Opstra Strategy Builder. तो यहाँ पर मैंने बेसिक से सीखा है. And then if you are advanced, then you can go to the master class. The same thing you can find in the playlists. तो आप playlist में देख सकते हो कि you can learn about investing in case you are interested in investing, and if you're interested in doing the Nifty and analyzing Nifty, you can check it the post market report and all about the daily stock option trading. I have created a separate playlist, और ये जो options master class का है वो मैं इस playlist में डालूंगा. So we will be running an options master class, जिसमें we will pick up a stock option and we will try to see how we can trade this stock. Also, we will check out the most profitable strategies through back testing, and then we will use the option simulator of Opstra to adjust even in the worst market scenarios. And this is the options trading complete playlist. So do visit my channel, check out the videos, and based on your preference and your level and your interest in the stock, you can choose which one you want to watch. And if you have any questions, you can write in the comments below. Also, in each and every video just like this, you can check out that I have made chapters for you, so you can go to the specific time code. There is some interesting concept that you would like to read about. तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने टाइम कोड्स भी स्पेशली पेस्ट कर दिए. Even here I have placed the time codes with description of what I am going to say in this part. So this has been done for each and every video. Even this video I will do it. So do check this out. See the time codes. Okay. So this helps you for scrubbing the video. आप यहाँ पर use कर सकते हो इसके. और वीडियो पसंद आए तो do like and subscribe to my channel. तो ये रहा निफ्टी 50. और निफ्टी 50 में जाने से पहले हम SGX निफ्टी देख लेते हैं. सो दिस इज़ द SGX निफ्टी. तो ये कैंडल आप देख सकते हो 19 अगस्त को, जब हमारा ट्रेडिंग हॉलीडे था. उसके बाद में यहाँ पर पुल बैक हो गया 20 अगस्त. 21 और 22 का हॉलीडे था. 23 अगस्त को इट वेंट अगेन हायर. तो टुडे इधर मंडे है 23 अगस्त. और सिंगापुर निफ्टी में SGX निफ्टी वॉज शोइंग अ फॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद एट अराउंड 10-11 इट गॉट सम पुल बैक और यहाँ पर आके क्लोज हुआ है. नाउ लेट्स चेक निफ्टी. निफ्टी में भी आप देख सकते हो आज का जो दिन है, इट ओपनड विथ अ गैप अप और इसने हाई लगाया है 16,592 का, एंड देन इट वेंट डाउन और फिर पुल बैक आके यहाँ पर क्लोज हो गया है. अक्सर ये होता है कि मंडे को इट फॉल्स डाउन, द निफ्टी फॉल्स डाउन ड्रास्टिकली. इट्स कॉल्ड द मंडे में है, बट इट डिड नॉट हैपन टुडे. तो यहाँ पर थोड़ा सी फॉल होने के बाद द फॉल गॉट अरेस्टेड एंड इट वाज क्वाइट स्टेबल. लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी. अब इसमें भी आप आवरली चार्ट देख सकते हो. बैंक निफ्टी डिड द सेम थिंग. आज इसने हाई लगाया है 35,427 का, एंड इवन दिस फॉल वाज अरेस्टेड आफ्टर हिटिंग अ लो ऑफ 34,817. इसमें भी 500 to 700 पॉइंट्स का फॉल होने के बाद में इट गॉट अरेस्टेड एंड क्लोज समवेयर इन द मिडल. जिसने इसका स्ट्रैडल लगाया होगा 35,000 का और 35,100 का, दे मस्ट हैव रिसीव्ड अ गुड प्रीमियम. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्स 14 के ऊपर चला गया था. लेट्स चेक द ऑप्शन चेन एंड सी व्हाट आर द पोजीशंस. फॉर 26 अगस्त एक्सपायरी द पोजीशंस इज सच दैट द 65,000 का स्ट्रैडल है, और आई थिंक people will want to close the market over here because
यहाँ पर 55 lakhs का कॉल्स है और यहाँ पर भी अराउंड 56 lakhs का कॉल है एंड द पुट इज़ 46 lakhs एंड 39 lakhs. ऑल्दो द पुट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. 16,400 पे आएगा मार्केट बट उसके बाद में इट हैज़ टू शूट हायर. लेट्स सी सितंबर. तो सितंबर में पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग पोजीशंस. अगेन इट्स द सेम थिंग. 65,000 पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन होने वाला है बिकॉज यहाँ पर पुट्स का सपोर्ट है और यहाँ पर कॉल्स का सपोर्ट है. ऑल्दो कॉल्स में इट्स ऑलमोस्ट गोइंग अराउंड 5+ lakhs और यहाँ पे 4.5 और 5 lakhs के अराउंड है. लेट्स गो टू 30th सितंबर. 30th सितंबर में भी स्ट्रैडल काइंड ऑफ सिचुएशन है. लेट्स गो टू 28th अक्टूबर. 28th अक्टूबर में भी 2.6. तो ऑल द स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल आई थिंक पुटिंग स्ट्रैडल्स. तो मार्केट 16,500 से कुछ ज़्यादा दूर जाने नहीं वाला है 2-3 महीने के लिए. ऑल्दो इट्स इन लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड बट आई थिंक इट विल कंसोलिडेट फॉर अ मंथ और टू. नाउ लेट्स चेक बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में हम लोग उल्टा आते हैं तो सबसे पहले 28th अक्टूबर चेक करते हैं. सो 28th अक्टूबर में पीपल आर फाइंडिंग 35,000 एज द पुट. 35,000 पे पुट राइटिंग हो रही है. 34,000 पे स्लोली हो गई है. तो 1.5 lakhs इज योर ईयर. सो मे बी सम पीपल आर बुलिश ऑलरेडी. तो ठीक है बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है एंड 35,000 seems to be a good put to write. Let's check 30th September. 30th September में भी if you can see 3.2 lakhs OI है और यहाँ पर से 1.2 lakhs है. सो आई थिंक इट इज स्टिल बुलिश. तो 35,000 to 36,000 का रेंज लग रहा है अकॉर्डिंग टू सितंबर. लेट्स गो टू 2nd September. और 2nd September में 35,000 स्ट्रैडल है. 36,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड माइनर सपोर्ट है 34,000. तो बैंक निफ्टी जब गिरता है तो बहुत ही धड़ाम धुड़म करके गिरता है एंड इट फॉल्स क्वाइट स्टीपली. ये रहा 26 अगस्त का विच इज़ द नियरेस्ट एक्सपायरी एंड इवन ईयर देयर इज़ टू मच ऑफ कंजेशन है 35,000 और यहाँ पर स्ट्रैडल्स है बट द सपोर्ट इज़ वेरी लो. तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है वो 5 एंड 11 lakhs पे आ रहा है जबकि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 6, 11, 8, 15. सो रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्गर द सपोर्ट इज़ वीकर इन 26 अगस्त. तो मे बी ड्यू टू एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज ये और नीचे जाने की संभावना है. बट फॉर 2nd September आई कैन सी स्ट्रैडल. तो आके फिर से ये कंसोलिडेट करेगा. So this was about Nifty and Bank Nifty, the two most important indices of India. Now let's quickly move on to a special section that is the stock talks. तो ये रहा M&M का hourly chart और आज आप देख सकते हो when it started, the day started, it went higher just like Nifty और उसके बाद में it started falling. यहाँ पर I felt fall has been arrested because ये पहले का भी लो था. यहाँ से पुल बैक मार के ऊपर गया था. सो आई हैड सोल्ड अ पुट बट उसके बाद में फिर से फॉल करना चालू कर दिया एंड आई हैड टू सीवियरली डू सम फायर फाइटिंग ओवर ईयर. ऑल्दो मेरी एक्सपायरी नियर नहीं है इसलिए आई वाज प्रीटी मच ओके विथ इट. 1 PM के बाद में इट केम ईयर और ये ऊपर चला गया था यहाँ पर से. आई थॉट कि अब ये फाइनल है इसके बाद में नीचे नहीं जाएगा बट इट स्टार्टेड फॉलिंग और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया 764. लेट्स चेक द डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देखो कैंडल कितनी बड़ी बनाई है इसने और ये जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर से जो टूट के निकला है 4 दिन से आके बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है एवरेज लाइन वहाँ पर आ गया है. आई एम होपिंग इट विल टेक सम पुल बैक ओवर ईयर नहीं तो काफ़ी ज़्यादा फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी और इसमें से आपको सीखने का भी काफ़ी मौका मिलेगा. आई विल शो यू द वीकली चार्ट. सो वीकली के हिसाब से फ्रॉम सेवरल वीक्स आफ्टर हिटिंग दिस लो उसके बाद में इसको वापस रिस्पेक्ट किया एंड इट हैज़ नॉट कम डाउन ओवर ईयर बट एट द सेम टाइम ये इसका जो पॉइंट है ये 3 times टेस्ट हुआ है. दिस इज द जोन, दिस इज एक्चुअली अ रीजन. सो आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन ओवर हियर, अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस हैज़ बीन अ जोन ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, तो 1, 2, 3. तो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसे इसने क्रॉस कर लिया, फिर बाद में 1 बार 2 बार 3 बार आ गया इस पॉइंट पर. एंड आई एम थिंकिंग दैट इज़ द 750 अराउंड पॉइंट है वो, और यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी जारी है. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 750 पे ये अरेस्ट होगा एंड दैट्स व्हाई माय पुट इज एट 750. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पोजीशंस. M&M में आई हैड अ 700 क्वांटिटी का 750 पुट इन सितंबर. तो 1 लॉट इज 700, प्राइस वाज अराउंड 11 और 12 समवॉट. उसके बाद में आई हैड टू डू अ फर्स्ट एवरेजिंग बिकॉज ये फॉल करना चालू कर दिया, और व्हेन इट वाज अराउंड 16 आई हैड एवरेज इट, फिर वैल्यू उसका 20 तक पहुँच गया विच वॉज अ सडन फॉल. I will show you the chart. So this is the chart and this is 23rd August. तो इसका जो है 9:15 से पुट राइज करना चालू कर दिया और यहाँ पर जाके अरेस्ट हो गया. सो आई थॉट कि 15-16 से ऊपर जाएगा नहीं, गिवन दैट पुट वाज अरेस्टेड ओवर ईयर.
एंड दैट इज़ वाई आई सोल्ड दिस पुट एट अराउंड द सेम प्राइस 15-16 के अराउंड आई हैड सोल्ड, और उसके बाद में सडनली इट स्टार्टेड राइजिंग एंड दैट इज़ वाई आई हैड टू डिफेंड दिस. हाउ आई हैव डिफेंडेड आई विल शो यू. तो यहाँ पर से आप सिर्फ M&M पर ध्यान दो, तो बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दैट अदर थिंग्स यू मे नॉट अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले जो है 750 का मैंने एवरेज कर दिया. अर्लियर प्राइस वॉज एट 12, तो 15.75 को डाल के एवरेज कर दिया. देन आई बॉट अ हेज उसके साथ में. तो पहले एक हेज था, फिर दूसरा हेज. सो आई हैड डबल द लॉट्स. सो सोल्ड 750 पुट जो है वो भी मेरे पास 2 है और हेज भी 2 है. इसके बाद में M&M का जब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, नीचे चला गया. उसके बाद सो व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, आई एक्सपेक्टेड कि एक बहुत ही ज़्यादा शार्प पुल बैक ना हो जाए कहीं पर. सो इसको ये एवरेज करने से अच्छा आई वेंट अ स्ट्राइक प्राइस डाउनवर्ड्स. जो लिक्विड थी 700, काफ़ी लिक्विड थी, इसको मैंने 7 रुपये में बेच दिया. इसका आपको मैं ग्राफ दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ 1 आवर चार्ट ऑफ 700 पुट M&M. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिसेंटली ये हाई अराउंड 5-6 लगा रहा था, बट बिकॉज M&M स्टॉक फेल वेरी ड्रास्टिकली तो ये ऊपर चला गया और इसका हाई लगा 7.4 पे और मैंने सेल कर दिया 7 पे. सो दिस ट्रेड वाज अ गुड ट्रेड. दिस पुट वाज अ गुड पुट, whereas this was a bad decision, but I could not see that it would fall further. That is why at that point of time I had taken this decision, but उस fall हो गया नीचे. और यहाँ पर when I sold this PE, तो ये PE naked था. यहाँ पर 700 का मुझे खरीदने में बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रहा था. सो बिकॉज इट फेल डाउन, ये 1-2 रुपये पे पहुँच गया. सो आई कुड नॉट बाय दिस हेज फॉर दिस सेल बिकॉज यहाँ पर स्प्रेड बहुत ज़्यादा था बीच में. ऑर्डर 1-2 रुपये के ऊपर लगा दिए थे लोगों ने. एंड दैट इज़ वाई आई वेंट अहेड एंड सोल्ड 700 का PE बिकॉज इसमें अगर इतना ज़्यादा स्प्रेड है और ऑर्डर्स महंगे लगा रहे हैं, जबकि ये तो पूरा ज़ीरो होने वाला है, तो मुझे लगा इसमें भी अच्छा प्राइस मिल जाएगा. एंड दैट यू कुड हैव सीन फ्रॉम दिस चार्ट कि ये प्राइस अच्छा मिल गया अपने को. 700 PE वॉज नेकेड और मुझे बहुत ही कम मार्जिन में 820 का C सेल करने मिल जाता था. सो दैट इज़ वाई आई हैव सोल्ड दिस फॉर 1 रुपीज़. सो 820 का अगस्त का CE है. आज मार्केट चल रहा है 765 पे. सो आई डो नॉट एक्सपेक्ट इट टू क्रॉस टू 820. और ये बहुत ज़्यादा पुल बैक करता है, ऊपर जाता है, तो आई विल स्टिल बी इन प्रॉफिट. So these are my current positions in M&M. After doing so much adjustments, जो two put sell है, 2 put buy है, 1 call sell है, 1 put sell है, और इसका मार्जिन लगा 1,95,000. I have a negative of 8,988 PNL. 22,000 रिसीव किया. I have a break even of 778 and upper end पे 849 पे.
और इस पे 7.89% का प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो 7% इंटरेस्ट ऑन 2 लाख रुपीज़ फॉर 1 मंथ इज़ ओके। लेट्स सी अब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। इन केस यू वांट टू चेक इट आउट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन माय नेक्स्ट अपडेट। और आप चाहते हो कि मैं अगर बाकी पोजीशंस और बाकी ऑर्डर्स की भी अपडेट दूँ, व्हाट वाज द लॉजिक एंड एवरीथिंग बिहाइंड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। So that's it guys. Thank you so much for watching. Do like the video, share it with your friends. और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it and hit the bell icon. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, that is tomorrow. Happy trading. Bye.